Good evening, everyone. This is Dr. Manisha Soni, your host for today evening. I welcome each one of you on behalf of Ignited Minds by PHF on this great session commemorating birth anniversary of Dr. Samuel Hahnemann, the pioneer of homeopathy. And today we are, also having, on this day we bring about a bonanza of learning from three wonderful speakers. So it's going to be a great journey of learning homeopathy. So let me take you to the introduction of the first speaker. Sir is Dr. Yogesh Malhotra, BHMS, a senior homeopathic physician, academician, and medical educator from Ludhiana, Punjab. He has over 24 years of clinical experience, having been in active homeopathic practice since 2001 and is successfully running 2 homeopathic clinics in Ludhiana. He has been deeply involved in homeopathic teaching and academic training since 2010 and has taught both offline and online since 2013. He previously served as a reader in the Department of Community Medicine at Lord Mahavira Homeopathic Medical College and Hospital, Ludhiana, where he was actively engaged in undergraduate teaching and academic mentoring. Dr. Malhotra is known for his holistic and clinically applied approach to homeopathy, with special emphasis on clear case analysis, materia medica correlation, and practical decision making. He regularly delivers academic lectures and seminars for students and practitioners, focusing on bridging classical principles with real world clinical application. So, without much ado, let us warmly welcome Dr. Yogesh Malhotra. Welcome, sir, and over to you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, and thank you, sir, for giving me the platform. आज का दिन ही बहुत इम्पोर्टेंट है, हैनेमन सर का बर्थडे है, तो स्टार्ट तो करेंगे, पर सर one second before you हाँ start. जी I जी see it's a great pleasure and honor to be your brother. Okay, and there can be nobody else than you that we can think about to be a speaker on this fantastic, auspicious occasion for all of us. Okay, so it's our pleasure that you're here, Yogesh. You deserve it. Thank you, sir. Thank you, sir. And younger brother is like a son, so I'm so proud to be your brother. Okay. Yes, God bless you. Over to you, please. Thank you, sir. You know, I'm your fan. I learned from you. You know that. अरे नहीं सर. Thank you, sir. Thank you, sir. May I start? Yes. अच्छा, मानसी जी, आपके टॉपिक्स क्या चल रहे थे? थीम चल रहा था आपका? What women want ऐसा थीम चल रहा है. हाँ, what women want, right? तो मैं बिल्कुल इससे ऑपोजिट जा रहा हूँ, बेसिकली ऑपोजिट स्टेट में जा रहा हूँ कि बेसिकली what women want, और दूसरी स्टेट जब मैंने आपसे बात की तो मैंने बोला कि मैं हार्ट रेमेडीज में से कोई एक रेमेडी एक्सप्लेन कर दूंगा. तो पहले आई थिंक ऑफ, जैसे हम फीमेल रेमेडीज में मॉस्कस पढ़ते हैं, तो देयर इज सिमिलर रेमेडी जो हार्ट के पे बहुत अच्छा एक्शन है, फीमेल पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है उसकी, दैट इज सेम्ब्यूल, राइट. फर्स्ट टाइम थिंकिंग अबाउट दैट, पर उसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, उसका बेस बहुत इंपॉर्टेंट है. देन आई थिंक कि आई शुड गो विद द रेमेडी जो एक रेगुलर हम यूज करते हैं, उसकी क्यों ना एक क्लिनिकल पिक्चर को अंडरस्टैंड किया जाए, और वो डे टू डे प्रैक्टिस में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है. आप सब अर्जुना यूज करते होगे इन प्रैक्टिस. कौन कौन यूज करता है? एनीवन? टर्मिनेलिया अर्जुन नहीं करते. सो अगर कोई थेरेपेटिक प्रिस्क्रिप्शंस करते हैं, जहाँ थेरेपेटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, जहाँ कभी भी आप कोई भी पेटेंट देख लोगे जो हार्ट को रिलेटेड है, जहाँ इन केस ऑफ आयुर्वेदा, राइट, और किसी से भी पूछ लो, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो हार्ट के लिए कुछ भी, तो वे बोल देते हैं कि आप अर्जुन छाल ले लो, वो बाल के पी लो, बोलते हैं ना कि अर्जुन छाल पी लो. सो इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर द हार्ट. हार्ट के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है और हार्ट को स्ट्रेंथन करती है, राइट. सो जब आप हार्ट रेमेडीज की प्रिस्क्रिप्शन हार्ट पेशेंट को देखोगे, जहां उसको प्रिस्क्राइब करोगे,
तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ स्टेट पे नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है, हार्ट में वेरिएशन क्या हो रही है, हार्ट में डिफेक्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सपोज इमेजिनरी बात कर रहा हूं अभी, कि सपोज कोई पर्सन है जिसके जो हाइपरटेंशन है जिसको, अब हाइपरटेंशन के साथ देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटीज, देयर इज फॉर एग्जांपल वो थोड़ा सा बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाता है, बहुत जल्दी घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है, और उस कंडीशन में समटाइम उसका जो मूड है वो कभी एलिवेट हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी नर्वसनेस आ जाती है, और बीपी उसका हाई रहता है, और पर्टिकुलरली जो बीपी हाई रहता है दैट इज सिस्टोलिक। अगर हार्ट रेमेडीज में से देनी हो हार्ट रेमेडी, तो यू शुड गो विद रिवॉल्फिया, राइट। क्यों जाओगे रिवॉल्फिया के साथ? क्योंकि रिवॉल्फिया को जब पढ़ोगे, उसके सॉल्ट्स के इंडिकेशन पढ़ोगे, तो आपको ये उसमें मिलेगा कि रिवॉल्फिया का एक्शन, जैसे रिवॉल्फिया एक्ट करती है बॉडी पर, वो थ्रू करती है न्यूरोकेमिकल्स के थ्रू, डोपामीन के थ्रू, सेरोटोनिन के थ्रू, ऑक्सीटोसिन के थ्रू, वो उनको स्टेबलाइज करती है। जब उनको वो स्टेबलाइज करती है, तो जो पेशेंट एंग्शियस स्टेट है, क्योंकि मूड एलिवेटर है वो, उसका मूड ऑल्टर हो जाता है, मूड खुश होने लग जाता है, तो बीपी फॉल कर जाता है। और इसीलिए जो थेरेपेटिक प्रिस्क्राइबिंग करते हैं फॉर एग्जांपल रिवॉल्फिया की, ब्लाइंडली जब हम हाइपरटेंसिव केस में रिवॉल्फिया देते हैं, और अगर पेशेंट सैड है, और अगर पेशेंट लो है, डिप्रेसिव स्टेट में है, और आप उसको रिवॉल्फिया दिए जा रहे हो, तो दे विल गो इनटू द मोर डिप्रेसिव स्टेट, वो एग्रावेट हो जाता है, और इसीलिए ये सॉल्ट डिसकंटिन्यू हो गया मॉडर्न मेडिसिन में, राइट। ऐसे सभी कितनी सारी मेडिसिन है, जैसे स्ट्रोपेंथस है, लॉरस एरेशियस है, जो हम हार्ट के लिए यूज कर सकते हैं, और सभी को अगर हम केमिकली अंडरस्टैंड करें, तो हम उसके जो एक्शन को वो बेटरली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई पेशेंट है जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन लो है, राइट, उसका हार्ट, उसको सपोज इन्फ्लुएंजा हुआ, उसमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन आई, और उसमें हार्ट की भी उसको साथ में प्रॉब्लम आ गई, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, पेशेंट बहुत वीक है, थोड़ा सा भी चलता है तो उसको सांस चढ़ता है, तो डॉक्टर ने उसको बोला है, फॉर एग्जांपल जो उसके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कि आपका जो हार्ट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ये वीक हो गया है, देर आर मोर कॉम्प्लिकेशन, पर हम नहीं कर सकते, हम आपकी सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हार्ट उसको फॉर एग्जांपल ले ही नहीं पाएगा उस सिचुएशन पे, तो आप मेडिसिन के साथ जाओ। और बहुत कॉमन मेडिसिन जो वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वो डिजॉक्सिन कर देते हैं, राइट। डिजॉक्सिन क्या करती है? बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप को वो ऑल्टर करती है, कैल्शियम को इंक्रीज करती है हार्ट के जो मसल्स में, सोडियम पोटेशियम पंप को ऑल्टर करती है, उसके कारण कैल्शियम डिपोजिशन नॉट कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द मसल वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो जाती है, तो पेशेंट उस कंडीशन में से बेटर रिवाइव कर पाता है। इन द मीन टाइम हमें टाइम मिल जाता है इन्फार्क्ट के लिए और बाकी कॉम्प्लिकेशन के लिए, हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं। यही काम होम्योपैथी में स्ट्रोपेंथस करती है, राइट। ऐसे ही लॉरस एरेशियस है, ऐसे ही कितनी सारी रेमेडीज हैं। ऐसी ही एक रेमेडी है अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना। आज के बाद आप इसको यूज करके देखना अपनी प्रैक्टिस में, इट विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत हेल्प करेगी। किसमें हेल्प करेगी? स्पेशली इन पर्सनैलिटीज विच आर वेरी वेरी क्लोज टू नेट्रम कार्ब और ऑरम, ऐसी पर्सनैलिटीज। अब ऑरम में भी हम क्या पढ़ते हैं कि हार्ट अफेक्टेड होता है, राइट। नेट्रम कार्ब में बेसिकली हम एसिडिटी, जीआईटी पढ़ते हैं स्टेट के साथ। नेट्रम कार्ब में हम क्या पढ़ते हैं? ऐसी पर्सनैलिटीज फॉर एग्जांपल जिनके फेस पर उनका ग्रीफ नहीं आता, दे आर वेरी चार्मिंग, दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी माइल्ड, उनका जो अंदर का दुख है उनके फेस पे नहीं आएगा कभी भी, राइट। लाइक साइक्लामेन, नेट्रम कार्ब, ऐसे। तो ऐसा ही ये कॉन्स्टिट्यूशन है। सो जहां पर अगर आपको लगता है कि नेट्रम कार्ब इज ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर यू ऑन दिस सिम्टम, और पेशेंट इज हैविंग ए कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, और ऑरम आप दे रहे हो, ऑरम फेल हो गई है, और पेशेंट के लिपिड्स हाई हैं, राइट, देन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी इन कार्डियक कंडीशन, जब लिपिड्स बहुत हाई हो, और ऐसे केसेस जिसमें आपको पैथोलॉजी नहीं मिल रही है, राइट। आपने ईसीजी करा लिया, आपने टीएमटी करा लिया, आपने इको करा लिया, प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, पर सिम्टम कार्डियक के हैं, राइट। थोड़ा सा भी चलता है, पेशेंट वीक फील कर रहा है, पेशेंट को सांस चढ़ रहा है। ईसीजी जब भी करवाते हैं उसको पेन है, यहां पर लोड है, देयर इज ए कंस्ट्रिक्शन इन द चेस्ट, कंस्ट्रिक्शन इन द मसल्स, थोड़ी देर में हैवीनेस है, सफोकेशन है, सब कुछ है।
सिम्टम कार्डियक हैं सारे, पर व्हेनेवर ही गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन उसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं आता। देन डॉक्टर क्या बोल देता है उसको कि आपको स्ट्रेस है, वो बोल देता है आपको स्ट्रेस है। पर ये बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। हमें समझना पड़ेगा स्ट्रेस क्या है। जैसे हम कोशिश करते हैं जानने की रूट कॉज क्या है। सो उस रूट कॉज को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ कि जैसे हम महाभारत में पढ़ते हैं, राइट, कि जब अर्जुन लड़ाई के लिए जा रहा था तो लड़ाई लड़ाई से इमीडिएटली पहले ही गेट वेरी एंग्शियस, उसको एंजाइटी हो जाती है। अगर आप वो वीडियो रेफर करो, महाभारत का जो वीडियो है, तो ही विल बिकम वेरी एंग्शियस, उसका गला सूखता है, उसके हाथ से जो बो है वो गिर जाती है एंड ही फॉल डाउन। वो अपने जो चैरियट है, वो रथ है, उसके ऊपर गिर जाता है पैर के भाव, और वो श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये लड़ाई क्यों लड़नी जरूरी है, क्योंकि सामने मेरे मेरे अपने हैं। तो अगर इस सिचुएशन को समझा जाए तो हम क्या कह सकते हैं? क्या अर्जुन डरपोक था, फियरफुल था? नहीं, वो डरा नहीं हुआ था, वो अनक्लियर था, क्योंकि उसका दिल, उसका दिमाग और उसका मन, जो उसकी मसल मेमोरी है योद्धा की टू किल, और उसका जो दिल कह रहा है कि नहीं ये मेरे लोग हैं, वो एक लाइन में नहीं है। वो कारण नहीं समझ पा रहा है कि अगर मैं मुझे इससे लड़ना है तो क्यों लड़ना है। मोमेंट ही अंडरस्टूड एवरीथिंग जो श्री कृष्ण ने उनको समझाया, नाउ ही फाइट लाइक एनीथिंग। ये सेंटर कोर इशू रहेगा अर्जुना प्रिस्क्राइब करने के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कैसे पर्सनैलिटीज होंगी जिनमें ये प्रॉब्लम आएगी, इसको इसको आप माइंड में रखना, एक छोटी सी स्टोरी को। दूसरी स्टोरी इसके पेड़ में छुपी हुई है, राइट। अर्जुना का जो पेड़ है, राइट, इट इज उसकी दो तीन क्वालिटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्वालिटी, बहुत लंबे बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं, राइट। दूसरी क्वालिटी, ये डिफिकल्ट टेरेन्स में ज्यादा ग्रो करते हैं। जितना डिफिकल्ट टेरेन ट्रेन कह रहा हूं मैं, टेरेन टेरेन मतलब जो कंडीशन है जहां पर वो ग्रो करते हैं, जितना डिफिकल्ट होएगा उसमें ही उतना ग्रो करेगा। इसलिए दे आर मेनी अलोंग द रिवर बेड्स। जो रिवर बेड्स होते हैं उसके अलोंग ये बहुत होते हैं। और इनकी क्वालिटी क्या है? इनकी रूट बहुत डीप जाती है, बड़ी स्ट्रांग रूट होती है और डीप जाती है। इतनी डीप कि ये उस रिवर बेड को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। तो ये क्वालिटी याद रखना कि वो रिवर बेड को होल्ड करके रखते हैं। तीसरी उन ट्री की क्वालिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रांग ट्री है जो अर्जुना, इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रेंथ, वो एक क्वालिटी रखते हैं कि इन इन केस ऑफ फ्लडिंग और इन केस ऑफ एनी स्ट्रॉम वो टूटते नहीं है कभी भी, मगर बेंड हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। दे विल बेंड बट दे विल नेवर ब्रेक। वो ट्री कभी टूटता नहीं है, वो बेंड हो जाएगा इन ए सिचुएशन, पर वो टूटेगा नहीं। चौथी जो क्वालिटी जो उनमें बहुत स्ट्रांग है कि जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्री ग्रो करता है, वो अपनी आउटर शेल, जिसको छाल बोलते हैं, राइट, जो आउटर कवरिंग है, इसलिए वो जब हम आयुर्वेदिक में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं अर्जुन छाल। वो जो कवरिंग है वो टूटती जाती है। अब इस चीज को याद रखना। तो जो मेडिसिन बनती है वो उस टूटे हुए छाल से नहीं बनती है, क्योंकि उसमें वो जो केमिकल्स हैं वो कम हो जाते हैं। वो बनती है जो फ्रेश छाल आती है, जो फ्रेश लेयर आती है ट्री के बाहर, उसके ऊपर बनती है। और वो जो फ्रेश लेयर आती है वो दिखने में शाइनी है, सिल्वरी, राइट, सिल्वरी। और इसके जो पत्ते हैं वो टेने के एंड में आते हैं, इसीलिए इसका नाम टर्मिनेलिया अर्जुना है। अर्जुना मीन्स शाइनी, सिल्वरी, एंड टर्मिनेलिया मीन्स इसके पत्ते टर्मिनल पे आते हैं, इसलिए टर्मिनल टर्मिनेलिया अर्जुना इसका नाम है। अब ये ट्रीज की देखो क्वालिटीज है। अब वो जो छाल है, जो उसकी लेयर है, अगर उसको हम थोड़ा सा वो कर लें, उसके केमिकल्स देखें, तो उसके केमिकल्स में क्या है? उसके केमिकल्स में, एक मिनट, मुझे ना ये नाम भूल जाता है, एक मिनट होल्ड करो।
मैं इसको शेयर करता हूँ, रुको। कहाँ गया? देखो ये दिख रहा है। Yes, sir. देखो इसमें क्या है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? हम सिर्फ उस पे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल देखो, समटाइम हम, जैसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स के थ्रू हमारे पे सारा इफेक्ट होता है, पर इफेक्ट तो केमिकल्स के थ्रू आता है ना हमारी बॉडी में। तो जो फिजिकल आइडेंटिटी है, जो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसको इग्नोर हम जब करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है वो पिक्चर इनकम्प्लीट हो जाती है। तो हमें उसको भी साथ में लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्रेटेगस, आप हार्ट रेमेडी पढ़ते हो, हम नॉर्मली कहते हैं क्रेटेगस इज वेरी गुड फॉर द स्ट्रेंथनिंग द हार्ट, नॉट ए डिजीज कंडीशन, स्ट्रेंथनिंग द हार्ट। जब आप उसके केमिकल्स देखोगे, उसमें सारे वही केमिकल्स हैं जो बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देते हैं क्रेटेगस में। ऐसे रिवॉल्फिया में सारे ही वही हैं जो जो हमारी न्यूरोकेमिकल्स है उसके ऊपर काम करते हैं, राइट? ऐसे ही जब इसको पढ़ोगे, अर्जुना, अर्जुना के जब छाल को उसको स्टडी किया जाता है, उसमें टेनिन्स हैं, राइट, जो कार्डियो प्रोटेक्टिव हैं। उसके बाद अर्जुनिन एक एसिड एंड टर्मिनेटिक एसिड है जो स्ट्रेंथन करता है कार्डियक मसल को, और उसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, जैसे जो टी में भी होते हैं, कॉफी में भी होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, अगेन फॉर द हार्ट एंड वेसल्स। और उसमें सेपोनिन्स एंड फाइटोस्टेरॉल्स हैं, जो लोअर करता है ब्लड लिपिड को और कोलेस्ट्रॉल को, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसीलिए इट इज ए वेरी वेरी गुड रेमेडी। जहां पर फॉर एग्जांपल इशू कोलेस्ट्रॉल का है, वहां पर ये रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रुको, देखो ये क्या करता है केमिकल, फिर हम उसकी मेंटल स्टेट पर आते हैं। जो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है, देखो ये क्या करता है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द डिजिटालिस जिंक्सिंग अर्जुना। ये इंट्रोपिक एक्शन रखता है, उसका मतलब इट स्ट्रेंथन्स द हार्ट, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रेंथ करता है, जस्ट लाइक स्ट्रोपेंथस, बट लाइक जस्ट लाइक डिजिटालिस, पर माइल्डर देन दैट, उससे कम थोड़ा सा, राइट? कैसे इंक्रीज करता है? एक्ट बाय इंक्रीजिंग द कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू द हार्ट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो कंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसीलिए अर्जुना इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर द हार्ट फेलियर्स, लो कार्डियक टोन में, पोस्ट हार्ट अटैक रिकवरी, हार्ट अटैक के बाद अगर पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा है, उसमें फिटिग रह रही है और ब्रेथलेसनेस रह रही है आफ्टर एग्जर्शन, ये बहुत अच्छा काम करेगी। अदर केमिकल सब्सटेंस जो उसमें है, दैट इज फ्लेवोनॉइड्स। इट इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, एंटीऑक्सीडेंट एंड वासोडायलेटरी इफेक्ट है, डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड डिप्रेशन। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं रिसर्च में से कर रहा हूँ, ये ऐसी नहीं है कि ये हवा में बात है, ये रिसर्च में से पढ़ रहा हूँ, राइट? ये सारी चीजें जो फ्लेवोनॉइड देखो किस में होती है, कैमोमिल टी हम कहते हैं लेने के लिए, हम लेमन कहते हैं, ऑरेंज कहते हैं, राइट, ब्लूबेरीज, एप्पल्स, अनियन, ब्रोकली, डार्क चॉकलेट, ग्रीन टी, इन सभी में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो फ्लेवोनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें फॉर एग्जांपल इसमें इफेक्ट देते हैं। देन, और फ्लेवोनॉइड्स देखो क्या क्या होता है, इट फॉर एग्जांपल जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, उसके स्क्वेंजर्स हैं, उसको खाते हैं, उसको खत्म करते हैं। इट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड प्रिवेंट एथरोस्क्लेरोसिस, ये उसको भी प्रिवेंट करता है। माइल्ड वासोडाइलेशन बाय रिलीजिंग आर्टरियोल्स, सपोर्ट कॉग्निटिव फंक्शंस। तो इसीलिए ये जो रेमेडी है उस कंडीशन में ये हार्ट को सपोर्ट करती है, जहां पर फॉर एग्जांपल पेशेंट या तो हार्ट कंडीशन से गुजर रहा है या किसी कंडीशन से भी गुजर रहा है, तो वहां पर इट इज ए वेरी गुड रेमेडी। तो इसकी इंडिकेशन हो जाती है जहां पर पेशेंट वीक फील कर रहा है अपने आप को और उसके लिपिड्स बहुत हाई हैं, तो वहां ये रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मगर उसके साथ अगर आप मेंटल स्टेट को ऐड कर लो तो ये प्रिस्क्रिप्शन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन की तरह काम करेगी। तो मेंटल स्टेट को समझने के लिए कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं यूज कर सकते, तो आप जो मैंने स्टोरी बताई है आपको अर्जुना की, और जो मैंने ट्रीज की क्वालिटी बताई है, अगर आप उसको कनेक्ट करोगे तो आप इसकी स्टेट ऑफ माइंड को समझ सकते हो। तो ये कैसे पर्सन होंगे? इट इज जस्ट लाइक
उसी ट्री की तरह जो डिफिकल्ट कंडीशन में रेज करेंगे, जो अपनी फैमिली के, फॉर एग्जांपल जैसे इसके ट्री के बारे में बताया कि ये ट्री कहाँ ग्रो करता है, अलोंग द रिवर बेड। रिवर बेड सबसे ज्यादा वॉलेटाइल एरिया है, कभी भी पानी आएगा तो वो सारी की सारी मिट्टी को बहा ले जाएगा, तो वो सीड के लिए अनस्टेबल एरिया, मगर ये बेस्ट वहां ग्रो करते हैं उस कंडीशन में। तो ये भी ये पर्सन कैसे होंगे कि इनमें, फॉर एग्जांपल अगर इनमें, क्यों कह रहा था जब मैंने स्टार्ट ऑफ क्लास में बोला कि टॉपिक तो फीमेल क्या है, मैं उसके ऑपोजिट जाता हूं, मैं जा रहा हूं इन्हें मैस्कुलिन वे ऑफ लिविंग। मेल्स, देखो मेल्स कैसे होते हैं, आप अपने पापा को इमेजिन करके देखो, देर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सप्लेन देम। अगर उनसे पूछ लो ना वो कैसा फील करते हैं, वो बता नहीं पाएंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो बता नहीं पाएंगे। आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, वो बता नहीं पाएंगे, राइट। आपको क्या दिखता है बाहर से, आपको अपने पापा के बाहर क्या दिखता है, टर्मिनेलिया अर्जुन के बाहर की आउटर ड्राई क्रस्ट जो बहुत हार्ड है, ब्रिटल है, बहुत हार्ड है, पेनिट्रेट नहीं कर सकते उसको, आपको वो दिखती है उनमें। पर अंदर क्या है, अंदर एक वनरेबिलिटी है, अंदर एक स्ट्रेस है, अंदर एक द्वंद है, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस चीज को मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो स्ट्रेस है जो हम नॉर्मली ऑरम में पढ़ते हैं, द इश्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कोई पेशेंट, it's not about the male and female in the physiological sense, male and female in the mental emotional level, फीमेल मेल की तरह हो सकती है और मेल फीमेल की तरह हो सकता है। तो आपके पास, आपके सामने जब कोई ऐसा पेशेंट आए जिसका इशू, द सेंटर जो उसकी लाइफ का है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी लाइफ में साथ में इश्यूज क्या है, इश्यूज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इश्यूज ऑफ गिल्ट, इश्यूज ऑफ बिट्रेयल, ये सारे इश्यूज हैं। मगर ये सारे इश्यूज नेट्रम काप की तरह अंदर समेट के बैठा है, बाहर शेड ऑफ नहीं कर रहा। जैसे टर्मिनल अर्जुन का वृक्ष जो पेड़ है, वो अपने आउटर शेल को जब वो वीक हो जाती है, जब यूजलेस होती है, उसको शेड करता है। इसका पेशेंट वो उसको ऑफलोड नहीं कर पाएगा, ये उनके लिए सबसे डिफिकल्ट चीज होगी, अपनी अंदर की चीज को बताना, अपने अंदर के इश्यूज को बताना, अपने अंदर की बात को बताना। दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर सेंसिटिव, बट ये कभी भी किसी भी सिचुएशन में टूटेंगे नहीं, बेंड हो जाएंगे। तो ये किसी भी सिचुएशन में क्या करेंगे, ये अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप को ऑल्टर कर लेंगे, मगर ये कभी भी उस सिचुएशन में हार नहीं मानेंगे। सो दिस इज द प्राइम क्वालिटी जो इनमें आपको स्ट्रांगली मिलेगी। तो जब ये इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ जिएंगे या इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ रहेंगे ज्यादा देर तक, जो इनका ऑर्गन इफेक्ट होएगा वो हार्ट का होएगा। और हार्ट में ऑर्गन ये नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक हो गया इनको, नो, ये इसमें समझने वाली बात है। दे आर नॉट लाइक लॉरस सेरेशियस फॉर एग्जांपल ना स्टोपेंथस जिसमें पैथोलॉजी है, इनमें पैथोलॉजी नहीं है, इनका हार्ट वीक हो जाएगा उस सिचुएशन में, एथेरोस्क्लेरोसिस डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, स्लोली स्लोली ये जवाब दे रहा है इनका हार्ट उस कंडीशन में, एथेरोस्क्लेरोसिस आना शुरू हो जाएगा, ब्लड में लिपिड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, चेस्ट में हैवीनेस एंड पेन होनी शुरू हो जाएगी, चलते वक्त सांस चढ़ेगा, सफोकेशन होगी, एंजाइटीज होगी, और साथ में इनका फेस बिल्कुल क्लीन रहेगा, जैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, राइट। बट वट दे वॉन्ट कि कोई इनसे बात करे, मगर वो उनसे बात करना और उनके बारे में, अंदर के बारे में पूछना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। कारण आउटर क्रस्ट, वनरेबिलिटी। तो वहां पर ऐसे पेशेंट्स को हम नैट्रम्यूर दे देते हैं, राइट। ऐसे पेशेंट को हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो इंट्रोवर्टेड है। वो इंट्रोवर्टेड नहीं है, बेसिकली दे वांट टू टेल, दे वांट टू ऑफलोड देयर सफरिंग, दे वांट टू ऑफलोड देयर स्ट्रेसेस, बट दे कांट, वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वहां पर वो वनरेबल हो जाएंगे, जो वो नहीं दिखना चाहते। तो इस कंडीशन में जब भी पेशेंट आपके पास आता है, इस कंडीशन में जहां पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसा जो एडवर्स कंडीशन में, राइट, पर वहां पर आपको स्ट्रगल दिखे, वहां पर आपको ये मत दिखे कि पेशेंट फॉर एग्जांपल इन ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन वो सब छोड़ के बैठ गया हुआ है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, नहीं, यहां पर ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती। ये कभी भी टूटते नहीं है, ये कभी भी टूटते नहीं है, ट्री की क्वालिटी है, ये टूटेगा नहीं,
कभी नहीं टूटेगा, ये टूटेगा नहीं, ये बेंड हो जाएगा, पर ये अपने सर्वाइवल को मेंटेन करेगा। सो दे कीप ऑन फाइटिंग द सिचुएशन, बट ये फैमिली को नहीं पता लगने देंगे कि ये किस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। तो इनके जो फैमिली है, इमीडिएट फैमिली, वो कुछ नहीं बता पाएगी कि क्या चल रहा है, सिर्फ इनके अंदर चल रहा है। ये भी आपको पता लगेगा उनकी सिम्टोमेटोलॉजी। तो ऐसा पेशेंट जब भी आपको नजर आए, ऐसा पेशेंट जब भी आपको दिखे ऐसी सिचुएशन में, थिंक ऑफ दिस रेमेडी। इट इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी इन दिस कंडीशन। मैं आपको इसका सिम्टम बताता हूँ। क्या, फॉर whom who carry emotional heartaches, इमोशनल heartaches कैरी करते हैं थ्रू लॉस, बिट्रेयल और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोज हु आर इमोशनली बर्डन एंड येट साइलेंट सफरर, साइलेंट होंगे। इसीलिए मैंने साथ में रेफरेंस नेट्रम का आप क्या दिया, डीप इनर ग्रीफ विथ चेस्ट टाइटनेस। ये इनका बहुत क्लासिकल सिम्टम है, ये टाइटनेस ऑफ द चेस्ट। देखो कीनोट है इसका, चेस्ट कंस्ट्रिक्शन विद द ग्रीफ, इसका कीनोट है। रिपर्टरी में जाओगे, चेस्ट कंस्ट्रिक्शन विद द ग्रीफ, उसमें ये रेमेडी पड़ी हुई है। वीपिंग व्हेन अलोन हाइड्स इमोशन इन फ्रंट ऑफ अदर, अकेले रोएंगे, राइट, पर उसको ऑफलोड नहीं कर पाएंगे अगर किसी के सामने। केयर्स फॉर अदर, दूसरों के लिए, फैमिली के लिए, फैमिली ओरिएंटेड होएंगे। द पर्सन विद इनर करेज, दोज हु रीसेंटर देमसेल्फ आफ्टर इमोशनल एग्जॉस्टेड। मतलब इनकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया, वो पीक में उसके जाके अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीसेंटर करेंगे। ये उसमें नहीं जाएंगे कि नहीं मैं हाथ खड़े कर दिए, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, दोबारा से किया जा सकता है, राइट, दोबारा से चीजें हो सकती हैं। दे विल फाइट अगेन, राइट, वो दोबारा से करेंगे अपने आप को। लाइक द ट्री विच बेंड बट नेवर ब्रोक, दे मूव टुवर्ड्स द ड्यूटी फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट एंड फियर। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जहां पर डर आ रहा है, जैसे अर्जुन की एग्जाम्पल दी मैंने महाभारत से, तो जहां पर भी डर आएगा, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, दे विल चूज ड्यूटी ओवर दैट, राइट। वहां पर भी देखो कि क्या है, कृष्ण ने उनको क्या बोला, तो अपना धर्म निभा, क्षत्रिय धर्म। तुझे कुछ लेना देना नहीं है कि वो जानते हैं नहीं जानते, एक धर्म है, एक अधर्म है, तूने अपना क्षत्रिय धर्म निभाना है। सो दे विल गो विद द ड्यूटी। तो ड्यूटी के नाम पर, ड्यूटी की फीलिंग के ऊपर ये दोबारा से खड़े हो जाएंगे। सो ऐसे पर्संस हम बहुत आराम से उनको ऑरम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, समटाइम नैट्रम सल्फ, क्योंकि नैट्रम सल्फ की स्टेट में भी देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, राइट। हम पढ़ते हैं ना उसमें कि पार्टनर के लिए रहता है कि पार्टनर मुझे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, बट आई एम हैविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी टुवर्ड द पार्टनर उसके साथ जाता है। नैट्रम का आपकी शेड मिलती है कि जहां पर उसके फेस पर कभी वो ग्रीफ दिखता नहीं। जैसे नैट्रम का आपके, अगर हम नैट्रम का में देखते हैं ना, समटाइम्स पेशेंट हंसता है, स्माइल कर रहा है, बहुत अच्छा है, माइल्ड है, अच्छे से बात कर रहा है, देन हम उससे पूछते हैं कि स्ट्रेस क्या है, तो वो कहता है कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरी तो लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है। मगर आप उसकी जो पैथोलॉजी देखते हो तो 2-3 ऑटो इम्यून डिजीज हैं और प्रॉब्लम है। तो हम सोचते हैं ना यार इतनी सारी प्रॉब्लम क्या, अगर इसकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो कोई, तो पता चलता है जब आप उसको प्रोब करते हैं, देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट, मगर वो उसने अपने डीप हाइबरनेशन में डाल दिए हुए हैं कि अब उसको भी याद नहीं है। तो ये वैसी सिचुएशन आपको दिखेगी। द पर्सन हु होल्ड्स अदर टुगेदर बट क्वाइटली फाइलिंग अपार्ट, दूसरों को साथ रखते हैं पर खुद बिखर रहे हैं स्लोली। स्ट्रॉन्ग डिपेंडेबल बट कैरीज unspoken grief or overburdened responsibility, the one who need gentle heart strengthening to restore not just physical health but emotional equilibrium। वहां पर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनके लिए कि इसको हैंडल करना। तो इस रेमेडी को आप यूज करके देखो, इस रेमेडी को आप डे टू डे फॉर एग्जांपल कंडीशंस में भी यूज करके देख सकते हो। कि फॉर एग्जांपल जहां अरिथमियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पेशेंट्स में आपको पेल्पिटेशंस मिलेंगी, रिदमिक कंडीशंस मिलेंगी, और ये उसको भी ठीक करता है। देखो रिदमिया को भी और एंजाइटी को क्यों ठीक करता है, क्योंकि इसमें जो केमिकल है, राइट, वो क्या करता है, देखो मॉड्यूलेट द वेगल टोन, वो वेगल टोन को मॉड्यूलेट करता है, इसलिए जो एंजाइटी है, पेल्पिटेशन हो रही है, वो एकदम से डाउन हो जाएगी। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि कंसिडर अर्जुना इन इमोशनल हाइपरटेंशन, जहां पर हाइपरटेंशन इमोशनल है,
राइट। सपोज आपका पेशेंट है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा किसी कंडीशन में, आप उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे रहे हो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आपको पता है कि उसका हाइपरटेंशन कब बढ़ता है? जब वो इमोशनल हो जाता है, जब स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या है? फैमिली का स्ट्रेस, क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसकी बच्चे की फीस देनी है, ये करना है, उसका वो करना है, मम्मा ठीक नहीं है, उनको लेके जाना है। वो सारा कुछ सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रहा है और उसका बीपी शूट अप हो रहा है। जब भी वो कंडीशन बढ़ रही है, उसका साथ में बीपी बढ़ रहा है। और एवरी टाइम, क्योंकि उसमें रिदमिक कंडीशन है और पेशेंट को डॉक्टर रेफर कर रहा है, गो फॉर द ईसीजी, गो फॉर द टीएमटी, पर उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ईसीजी नॉर्मल आ रही। मतलब अब वो उसको क्या इशू है? उसके जो रिदम में प्रॉब्लम आ रही, रिदम में मुश्किल है उसके। देन दिस इज द बेस्ट इंडिकेटेड रेमेडी उस कंडीशन में। इमोशनल हाइपरटेंशन पोस्ट शॉक, बट व्हेन ईसीजी इज नॉर्मल, हार्ट फील दैट बर्डन, जो उसका हार्ट है वो उस बर्डन को फील कर रहा है, उस कंडीशन में गो फॉर इट। दिस इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट। बताओ किसी को कुछ समझ नहीं आया तो? एनीवन? Sir, how do you use it, sir, in mother tincture or in potency form? नहीं, आप इसको पोटेंसी पीछे देखो। पहली जो अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, उसके हिसाब से मैं इसको सिर्फ यूज करता था इन मदर टिंचर। अब मैं इसको यूज करता हूँ इन 3200 1M अकॉर्डिंग टू स्टेट, उसके हिसाब से। सो अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्टेट अवेलेबल नहीं है, सो प्रिस्क्रिप्शन मेरी जो है वो डिपेंड करती है स्टेट के ऊपर। जितनी स्टेट स्ट्रांग है, जितनी क्लियर स्टेट है, जितने क्लियर की नोट है, तो प्रिस्क्रिप्शन में पोटेंसी हाई चले जाएगी। अगर मेरे पास सिर्फ लोकल पैथोलॉजिकल स्टेट अवेलेबल है, आई विल गो विद द मदर टिंचर। और इन केमिकल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें नहीं मालूम होगे तो हम नोइंगली एंड अननोइंगली प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे पेशेंट की। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेनी टाइम इट हैपेंस कि वी यूज चेलिडोनियम मदर टिंचर, राइट। मदर टिंचर सपोज यूज किया है, आई नो आपका जो ग्रुप है इसमें मोस्टली प्रिस्क्रिप्शन पोटेंसी की होती है और मेंटल सिम्टम के ऊपर होती है। बट समटाइम्स सपोज वी गिव चेलिडोनियम क्यू इन ए पेशेंट हु इज प्रेग्नेंट, राइट। अभी उसकी 2 या 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी। हम होम्योपैथी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम क्यों? क्योंकि एक लाइन है, वी ट्रीट द मैन एंड नॉट द सिक। यहां तक तो ठीक है, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो हम रेमेडी दे रहे हैं उसकी कुछ फिजिकल इम्प्लीकेशन भी है। वो एक्ट किसके थ्रू कर रही है? इसी मशीन के थ्रू, इसी मैन की मशीन के थ्रू एक्ट कर रही है। सो अगर वोल्फिया काम कर रही है, इट इज वर्किंग थ्रू द न्यूरोकेमिकल्स। उसमें जो वो उसको रिलैक्स करती है, वो न्यूरोकेमिकल्स के थ्रू रिलैक्स करती है। ऐसे ही बाकी रेमेडीज। तो व्हेन वी प्रिस्क्राइब चेलिडोनियम टू ए प्रेग्नेंट लेडी और 1 to 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है उसमें, तो चेलिडोनियम की एक खास कीनोट क्वालिटी है। आप चेलिडोनियम के कीनोट्स में जाओ, आपको जगह जगह हर ऑर्गन में, हर जगह में कॉन्ट्रैक्शंस मिलेंगी। सो इट इज ए वेरी, उसका जो केमिकल है चेलिडोनिन, इट इज हैविंग ए क्वालिटी ऑफ क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शन। अबॉर्शन कॉज कर देगी चेलिडोनियम। सो कभी भी प्रेगनेंसी में हमें चेलिडोनियम नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही डिप्रेसिव पर्सनैलिटीज में हमें रोवोल्फिया नहीं देनी चाहिए, राइट। अगर आपको लगता है कि हाइपरटेंशन है और साथ में डिप्रेसिव पर्सनैलिटी है, इट इज बेटर टू प्रिस्क्राइब रोवोल्फिया इन 200 और 300 और 30 रादर देन गिविंग इन मदर टिंचर, राइट। सो रेमेडीज के सेंटर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे ही ये जो मैंने बात बताई है, ये इसका सेंटर है अर्जुना का। इसको याद रखना कि व्हेनेवर आप ऑरम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इट इज नॉट वर्किंग, नेट्रम का प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इट इज नॉट वर्किंग, थिंक ऑफ दिस रेमेडी। प्रोवाइडेड उसके बैकग्राउंड में हार्ट की कंडीशन हो, प्रोवाइडेड पेशेंट बहुत स्ट्रांग पर्सन हो आपके सामने बाहर से, राइट, बाहर से, मगर अंदर से वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, पर बहुत ज्यादा कमिटेड है ड्यूटी के लिए, और देयर इज ए वेरी स्ट्रांग सेंस इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, एंड बट ही इज सफरिंग इन द साइलेंस। वो साइलेंस में सफर कर रहा है, राइट। तो पेन है उसमें, पेन है, डीप पेन है, बट इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड।
द लॉस, द बिट्रेयल, द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, वो जल्दी आ गई है उसकी लाइफ में। जैसे कार्सिनोसिन में, जहाँ उसमें हम और में पढ़ते हैं, वो बहुत जल्दी आ गई है और खत्म नहीं हो रही। सो जो एक पेशेंट रिस्पॉन्ड किया ब्यूटीफुली इसकी स्टेट के हिसाब से, वो बचपन 11 साल की एज से वो काम कर रहा है, रेगुलरली काम कर रहा है। और वो कह रहा है कि वो सर्कल खत्म ही नहीं हो रहा उसका, तब से लेके अब तक वो हार्ड वर्क चली जा रहा है, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, कभी किसी सिस्टर का कुछ करना है, कभी किसी ब्रदर का कुछ करना है, एंड कीप ऑन डूइंग विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट एक्सप्रेसिंग कि नहीं यार बस आई एम टायर्ड, नहीं, क्योंकि वो कोलैप्स नहीं करेगा। उसकी इनर रिजिलियंस, जो हम रुब्रिक लगाते हैं, परसेवरेंस या फर्टिनिसिटी, वो बहुत स्ट्रांग रहेगी उसमें, वो स्ट्रांग रहेगा उसको लाइफ में, वो कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा, राइट। मगर उसके हार्ट में कुछ ना कुछ टाइट हो जा रहा है, उसके चेस्ट में कुछ ना कुछ टाइट हो ही जा रहा है, उसकी चेस्ट टाइट फील कर रही है, वो स्ट्रगल कर रहा है वहां पर, उसको सांस चढ़ रहा है, उसको सफोकेशन हो रही है, इज नॉट फीलिंग वेल, ही स्ट्रगल टू स्पीक, वो नहीं बोल पाएगा, आउट ऑफ प्राइड, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल पाएगा, राइट। सो दे ऑफन फील, ये पेशेंट किसके साथ आएंगे, दे फील विद, दे केम विद द क्रॉनिक इनर प्रेशर, कि कुछ है जो यहाँ पर हमेशा टाइट है। दे ऑलवेज, दिस इज द कॉमनेस्ट जेस्चर, कैक्टस जैसा जेस्चर ये कॉमनेस्ट रहेगा उनमें। स्लीपलेसनेस रहेगी फ्रॉम रेसिंग थॉट, कॉफिया जैसे बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं, पर थॉट्स किसके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जिस ब्रदर के लिए सब कुछ किया है, अब आज वो ब्रदर कह रहा है कि आपने मेरे लिए क्या किया, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट इन द हार्ट। वो अपने ब्रदर को कभी बोलेगा नहीं, कभी नहीं बोलेगा, बिकॉज वो क्यों चाहता है, ही वांट टू होल्ड एवरीबडी टुगेदर, वो अपनी सारी फैमिली को होल्ड करके रखना चाहता है। और एज ए रिजल्ट उसको क्या मिल रहा है, पेल्पिटेशंस, एंजाइटीज, एरिथमियाज, वीकनेस इन द हार्ट, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, लिपिड्स हाई हो गए हैं उसके, ये सारी स्टेट आ रही है। मूवमेंट आप उसको दोगे, ये स्टेट में आप प्रिस्क्राइब करोगे, नेचुरली ही विल फील बेटर, वो एकदम से उसमें बेटर होने शुरू हो जाएगा। उस पेशेंट में काफी बेटर हुआ उस कंडीशन के बाद। एनी क्वेश्चंस? इज इट हेल्पफुल? काम आएगी? Yes, sir. Yes, sir. तो हमेशा याद रखना, दे आर नेवर ड्रामेटिक सफरर्स, उनको कॉन्सोलेशन नहीं चाहिए। यहाँ पर नेटरम्यूट जैसी स्टेट आएगी, उनको कॉन्सोलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि वो कमजोर नहीं है। दे डोंट वांट कि उनके पास आके कोई कंसोल करे। अगर वो स्ट्रेस में है, अगर किसी प्रॉब्लम में है, वो ये नहीं सुनना चाहते हैं कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, हम हैं तेरे साथ, चिंता मत कर। वो ये नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं। दे आर इनफ टू होल्ड ऑन एवरीबडी, मगर उनको चाहिए स्पेस, उनको चाहिए कोई उनको सुने। इसीलिए मैंने बोला पापास के बारे में बात की मैंने स्टार्टिंग में। आप देखो अपने पापास, वो ऐसे ही होंगे। कहीं ना कहीं हर पापा में कोई अर्जुन छुपा हुआ है, जो फाइट कर रहा है उस महाभारत में जो उसकी जिंदगी में चल रही है। रोज कभी बच्चे की फीस की तरह, कभी किसी और चीज की तरह, कभी किसी रिलेशन को बचाने की तरह, कभी अपने रिलेशन को बचाने के लिए कि कहीं वो ही ना टूट जाए, कभी कुछ और ना हो जाए। वो जंग हमेशा चल रही है, वो महाभारत हमेशा चल रही है। तो अगर इस बात को आप समझ पाओ तो आप अर्जुना को बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। सर ये कौन सी बुक्स इसमें रेफर करनी चाहिए इस तरह से स्टडी करने के लिए? द माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बच्चे, कि सबसे पहले कोई भी प्लांट है, जो हमने डिस्कस किया, इससे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। सबसे पहले मैं अंडरस्टैंड करता हूं वो प्लांट की क्वालिटीज क्या है, देन मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो प्लांट ऐसा क्यों है, उसकी केमिकल क्वालिटीज क्या है जो फॉर एग्जाम्पल उसको शेप देती है, राइट। कोई भी दवा अगर बॉडी पे काम करती है, किसी सिस्टम पे काम करती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है। जैसे मैंने बोला क्रेटिगस में सारे के सारे जो केमिकल्स आप पढ़ोगे वो सारे कौन से हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो सिर्फ स्ट्रेंथ दे सकते हैं। इसीलिए क्रेटिगस किसी भी कार्डियक कॉम्प्लिकेशन में यूज नहीं होती है। उसको कब यूज करते हैं, इट इज ए टॉनिक फॉर द हार्ट। वो स्ट्रोपेंथस की तरह कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं करती है,
वो लॉरेस रेशियस की तरह वीक कंडीशन में उसको रिवाइव नहीं करेगी। वो क्यों करेगी? क्योंकि उसमें केमिकल ही ऐसा है। तो सबसे पहले मैं उस प्लांट के केमिकल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि उस वही सेम फॉर एग्जांपल प्लांट आयुर्वेदा में कहाँ यूज होता है और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। देन वही प्लांट माइथोलॉजी में कहाँ पड़ा हुआ है। वही प्लांट फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्राइबल्स हैं वो उसको कैसे यूज करते हैं। ट्राइबल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सब पता होता है। हम थोड़ी देर पहले अगुम्बा रेन फॉरेस्ट में गए थे। उस रेन फॉरेस्ट में जो उनकी इंटरनल ट्राइब्स है वो किसी को आने नहीं देते अंदर। वो इंटरनल ट्राइब है, वो बहुत कट ऑफ रहते हैं। वहां पर स्नेक बाइट करने पर वो कोई बाहर से नहीं लेते, वो कोई एंटी वेनम नहीं लेते, उनका अपना कोई सिस्टम है। और वहां पर वो जो हमें गाइड अंदर लेके गया, उन्होंने हमें बोला कि आप कोई भी ट्राइबल मिले आपने बात नहीं करनी है, नहीं तो वो आप पर अटैक कर सकते हैं, हम ही बात करेंगे। वो कहते हैं कि मैं इतने साल 3 साल हो गए वहां पर उस बंदे को, तो कहता मुझे आज तक एक डेथ नहीं मिली यहाँ पर। जबकि वो अगुम्बा जो रेन फॉरेस्ट है वो जो वो है नाजा उसके लिए फेमस है। इतनी बाइट्स होती हैं पर डेथ नहीं है। इसका मतलब उस ट्राइब को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। वो प्लांट्स के साथ ही करते हैं। सो ट्राइबल नॉलेज, मैं उसके बाद जाता हूँ ट्राइबल नॉलेज क्या है। देन उसके बाद जाता हूँ ओल्ड, फॉर एग्जाम्पल हमारे कोई ओल्ड पर्सन अगर किसी बोलते हैं कि ये सिचुएशन है तो ये खाओ, क्या वो प्लांट कहीं वहां रेलेवेंस है आसपास की नॉलेज में, बड़े बुजुर्ग में। देन उसको अंडरस्टैंड करता हूँ। देन आई गो फॉर द, उसके बाद मैं प्रूविंग्स में जाता हूँ। देन आई गो विद द प्रूविंग्स, देन आई गो विद द की नोट्स, देन आई गो विद द सिम्टम्स, देन द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेमेडी विल कम। वो सारी सारी पिक्चर आ जाएगी अगर ऐसे करोगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन अगर आपके सामने कोई केस आया है जो फॉर एग्जांपल प्योर थेरेपेटिक एक्सप्रेशन चाहिए वहां पर, आप तब भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए आप तब भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो द रेमेडी इन होल टोटेलिटी। सारी टोटेलिटी पता है आपको उस रेमेडी के बारे में, उस रेमेडी कैसे पैदा होती है आपको पता है, और ये हर जगह दिखेगा। देखो नक्सवामिका इग्निशिया सेम फैमिली को बिलोंग करती है, पर नक्सवामिका का ट्री स्ट्रॉन्ग, सीधा बिल्कुल और हार्ड, टूटने वाला, टूट जाएगा, वो झुकेगा नहीं। पर ऑन द कॉन्ट्ररी इग्निशिया क्या है? वो एक बेल है जो किसी और के ऊपर ग्रो करती है। इसलिए नक्सवामिका में आपको कितनी हार्डनेस और स्ट्रेंथ दिखती है, और इग्निशिया में इतनी माइल्डनेस और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दिखते हैं, क्योंकि इग्निशिया का प्लांट ही ऐसा है। तो इस सारी होल टोटेलिटी को जब मैं अपने सामने रखता हूं, देन आई दिस पिक्चर कि हाँ इसको ऐसे यूज किया जा सकता है। इज इट क्लियर? यस सर, अच्छा सर। एनी क्वेश्चंस? यानी ये पेशेंट हाई स्पिरिटेड रहते हैं सर? हाँ, इनकी स्पिरिट स्ट्रांग रहेगी, पर हर चीज की कीमत है, हर चीज की कीमत है, और इनकी कीमत अंदर की है, ये अंदर से टूट जाते हैं। इनकी कीमत वो है, इनका दिल बोलना चाहता है, इनका दिल एक्सप्रेस करना चाहता है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है आप में, इस पेशेंट में आपको दिखती है हर सिचुएशन में, ये ब्रेक तो नहीं होती, ये बेंड होती, पर वो फ्लेक्सिबिलिटी किसी कीमत पर आती है, और वो कीमत वो झेलते हैं। वो स्ट्रेस, वो बर्डन वो हमेशा फील करते हैं। वो दिखेगा आपको, मगर वो तब दिखेगा जब आप उनके पास आके बैठोगे। वो कभी आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि वो क्या कहेंगे, पापास देखना कैसे होते हैं, वो कभी नहीं बताएंगे कि ये चीज हो गई। वो उसको बफर रखेंगे फैमिली से कि इनको क्यों परेशान करना है। बच्चे को कभी मना नहीं करेंगे कि ये लेना, हाँ तू ले ले, कोई नहीं, टेंशन ना ले, हो जाएगा। वो हमेशा ये करेंगे, वो बफर रखते हैं, पर उसकी एक कीमत है, और उनकी कीमत वो दिल है उसका, जो स्लोली स्लोली जा रहा है, वो जाएगा, एक दिन जवाब दे जाएगा, एक दिन जवाब दे जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे पर्सन के साथ, पापास के साथ, यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू आस्क क्या चल रहा है जिंदगी में, पापा कल क्या हुआ, कैसे हो रही है, कैसे बिजनेस चल रहा है, फ्रेंड सर्कल कैसे है। दोस्त खत्म हो जाते हैं लाइफ के साथ उनके। तो उस सिचुएशन में उनसे बात करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बात करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, वो चीज अंदर मिल जाएगी। दे वॉन्ट टू टेल, दे आर नॉट गेटिंग दैट स्पेस। क्योंकि जब आप कहने लगोगे तो आप क्या कह दोगे, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, ये वो नहीं सुनना चाहते हैं। ये उनको भी पता है कि वो, उनको ये नहीं है ठीक हो जाएगा, उनको मालूम है वो ठीक कर लेंगे,
प्रॉब्लम है जो अंदर चल रहा है, क्या कोई बंदा उसको सुन सकता है? वो जो स्टॉटिक सोल है अंदर, जो स्लोली स्लोली उस तूफान को, राइट? सो इसको, इसकी अगर करक समझना हो तो एक लाइन में, द साइलेंट पर्सन, जिसके अंदर तूफान छुपा हुआ है, पर वो तूफान कभी आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तूफान फैमिली में नहीं आना चाहिए, वो हमेशा उसको मैनेज करके रखेगा। ऐसा कोई पर्सन आपके सामने आए जिसका हार्ट वनरेबल हो रहा है, मगर ईसीजी नॉर्मल आ रही है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, पर जैसे ही आपने उसको टेस्ट कराया उसके लिपिड्स हाई, गो विद दिस रेमेडी, इट विल वर्क फॉर श्योर। ओके सर, थैंक यू। फिर सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, इनको हाँ जी, सिंपैथी और कंसोलेशन नहीं चाहिए नहीं चाहिए? ना, ओके। कभी नहीं चाहिए होता। जो सेल्फ मेड है उसको नहीं चाहिए, क्योंकि उसको रास्ता मालूम है। सपोर्ट किसको चाहिए? जिसको रास्ता मालूम नहीं है। ये बचपन से खुद डेवलप हुए हैं, तो इनको कुछ नहीं चाहिए। इसको रास्ता मालूम है, इसको सिर्फ साथ चाहिए। इनको बंदा पीछे नहीं चाहिए अपने, कि मेरे पीछे कोई खड़ा हो कलकीरिया जैसे। इनको साथ चाहिए बस, कोई इनके साथ रहे। बिकॉज उनके लिए इंपॉर्टेंट भी क्या है? इंपॉर्टेंट फैमिली। तो इनके अगर साथ रहोगे आप, दैट इज एनफ। ये उसको मैनेज कर लेंगे उस सिचुएशन को। पर जब साथ कोई नहीं होगा तो प्रॉब्लम। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर सम इंसाइट इन डायबिटीज विद हार्ट ट्रबल्स, या डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, पर वो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट सर ने स्टार्ट आना है, क्लास लेनी है। रिस्पेक्ट टू स्किन, मुझे नहीं आइडिया स्किन में इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। सल्फर, सल्फर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सल्फर में कंटेंट नहीं है उसमें। नो, आर्निका में भी डिफरेंट हो जाएगा। इट इज मोर अबाउट इंजरी, राइट? इंजरी एंड सेंसिटिविटी इसमें रहेगी। तो इसकी स्टेट, जैसे मैंने बताया, इट इज वेरी क्लोज टू ऑरम, इट इज वेरी क्लोज टू नाट्रियम सल्फ, इट इज वेरी क्लोज टू नाट्रियम कार्ब बेसिकली। और नाट्रियम म्यूट जैसी स्टेट दिख सकती है आपको। इट इज मोर प्रैक्टिकल पर्सन जो डे टू डे लाइफ में जाएगा, राइट? मोस्ट लाइक जो फाइटर स्ट्रेंथ वाले बंदे होंगे वो देखेंगे आपको इसमें। आर्निका की स्टेट बिल्कुल, उसकी आर्निका की स्टोरी ही अलग हुई। ठीक है जी। सर, अगर पैथोलॉजिकल टेस्ट स्टेट में अर्जुना मदर टिंचर जैसे कि क्रेटागस के साथ दे सकते हैं, क्रेटागस हाँ, हो दे या दे कैक्टस? सकते हैं, पर मेरा मानना है बेटा कि हम उससे थोड़ी सी बात करके और उसकी डिजीज को समझ के, उसकी पैथोलॉजी और उसकी रिपोर्ट्स को समझ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ क्रेटिकस देना है कि यहाँ पर अर्जुना देना है। अगर सिर्फ हार्ट सब कुछ ठीक है, हमने सिर्फ उसको स्ट्रेंथ करना है। सपोज इन्फ्लुएंजा हुआ और उसके बाद उसका हार्ट प्रॉपरली वैसे नहीं चल रहा है, इट नीड्स ओनली ए स्ट्रेंथ। या एज के साथ वो स्लोली स्लोली वीक हो रहा है, तब उस कंडीशन में क्रेटिकस काम करेगी। देन ये स्टेट सारी एब्सेंट होगी जो अर्जुना की स्टेट है, क्योंकि क्रेटिकस में ये स्टेट नहीं आएगी, उसमें इश्यू ऑफ सिर्फ स्ट्रेंथ होएगा। तो जब आपने किसी पेशेंट को सिर्फ फॉर ए स्ट्रेंथ पर्पज के लिए देनी है तो क्रेटिकस होएगी। मगर उसके पीछे अगर ये स्टोरी है सारी की सारी, गो विद अर्जुना। और याद रखना है, लिपिड्स हाई होंगे और बहुत हाई होंगे। और ये भी एक पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं, डिसप्रपोर्शनेट टू द सिचुएशन हाई होंगे। मतलब ये नहीं है कि उसकी डाइट ही बहुत हाई लिपिड वाली है, फिर तो नेचुरली हाई होंगे। अगर वो खा ही बहुत रहा है, वो कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल डाइट मेरी इतनी नहीं है, बॉडी वीन है, उस कंडीशन में भी लिपिड्स बहुत हाई है, डायबिटीज नहीं है। सो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो उस कंडीशन को, वो क्लिनिकली एक्सप्लेनेबल नहीं है। अगर फिर भी हो रहा है, गो फॉर इट, गो फॉर इट। एनी मोर थैंक यू। क्वेश्चंस? ओके बहुत बच्चे। अच्छे सर, न्यू ड्रग शेयर करने के लिए थैंक यू सर। ओके डियर, ओके। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब ये और मुझे तो बहुत करीब करीब चलता है। बहुत क्लोज सर, बहुत क्लोज। हाँ, इसमें डिफरेंस कैसे ऑरम, करेंगे? हाँ, तो ऑरम के ऑरम बाकी और कीनोट्स, व्हेन वी हैव टू गो विद अर्जुना, उसके कीनोट्स, ऑरम की एक अपनी स्टेट, अपनी कीनोट्स, अपनी लैंग्वेज होगी उसकी। अर्जुना इज ए प्लांट रेमेडी, ऑरम इज ए मिनरल रेमेडी। सो इसमें जो ऑरम की स्टेट आएगी, हेलो, एम आई ऑडिबल?
हाँ, Yes, yes. जो ऑरम की स्टेट आएगी ना, ऑरम बिलोंग्स टू द मिनरल किंगडम। उसकी जो लैंग्वेज है, ऑरम का इशू क्या रहेगा? प्रॉब्लम इज विद इन मी, माई कैपेसिटी टू हैंडल द सिचुएशन। उसका जो इशू है वो वहां पर है। सो ऑरम में स्टेट आएगी, कैन आई हैंडल दिस। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑरम देखो कहां बिलोंग करती है, 11th कॉलम में और 6th रो। वहां पर क्या है कि उसने अपनी लाइफ की पीक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल की हुई है। नाउ देयर इज अ टाइम जहां पर ये जो उसकी इमेज है ये फॉल हो सकती है, इश्यूज आने शुरू हो गए हैं उस कंडीशन में। तो जब ऑरम बात करेगा वो अपने बारे में बात करेगा, अपने बारे में ये बात करेगा, दिस इज डिस्टर्बिंग मी। जब ये कोई बात करता है तो मुझे तंग करती है, अगर वो ऐसा कहे तो मुझे फील होता है। बिकॉज अर्जुना इज ए प्लांट रेमेडी, द इशू इज सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो ऑरम में और उसमें आपको नजर आएगा। सो ऑरम में ये आपको एक सिंगल साइड स्टोरी चलेगी, क्योंकि मिनरल्स में कोई और इशू होता ही नहीं, कोई परेशान नहीं कर रहा, कोई तंग नहीं कर रहा, मेरे में प्रॉब्लम। कलकेरिया को ये थोड़ी ना कि फॉर एग्जांपल दूसरा क्या कर रहा है, मेरे में कैपेसिटी नहीं है टू हैंडल दिस सिचुएशन। ब्राइटा में क्या है, आई एम नॉट हैविंग कैपेसिटी टू हैंडल दैट सिचुएशन। अगर किसी ने मुझे पूछ लिया कि ये कैसे करना है, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, प्रॉब्लम इज विद इन मी। मगर प्लांट्स मिनरल में देयर इज ए सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी। जैसे आर्निका है, इट इज ए सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी। हाथ ना लगाओ मुझे, बिकॉज आई एम सेंसिटिव, डोंट टच मी, डोंट बग मी। तो अगर उससे कोई पूछेंगे ये कैसे करना है, क्या यार बोला ना, डिस्टर्ब मत कर, दैट इज इशू ऑफ सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी। सो व्हेन यू लिसन टू द पेशेंट एज अ होल, आप उसकी पूरी स्टोरी को सुनोगे, यू विल केम टू नो कि ये वो बात ही नहीं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू है, और उसके नाल साथ जो चल रहा होगा दैट इज सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स हमेशा रिएक्ट करते हैं, सेंसिटिव हैं टू लाइट, क्लोरोफिल के थ्रू एनर्जी बनाते हैं, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकते। सो ऑल द प्लांट रेमेडीज में ये स्टोरी कॉमन मिलेगी। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो, मुझे लगता है नेक्स्ट स्पीकर का टाइम हो गया है। मैम? जी सर। संगीता। यस मैम, मेरा ऑडियो वीडियो ओके है? हाँ सर कुछ बोलना चाहते? यस सर, वेरी नाइस, थैंक यू। फैंटास्टिक थैंक यू, योगी, एज यूजुअल, एज यूजुअल। थैंक यू सर, थैंक यू। क्राइटेकस का एक मेरा एक्सपीरियंस है योगी। हाँ जी क्राइटेकस सर। का इशू जो होता है ना, इट इज मोर विद वाइफ और हस्बैंड। ओके ओके। वो एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, हेट्रेड फॉर हस्बैंड या एंगर फॉर हस्बैंड में है, आई थिंक क्राइटेकस। है सर, ऐसा कुछ मुझे लगता हाँ, है, कुछ ऐसा। दैट इज माय एक्सपीरियंस। मतलब हाँ I have used Cratagus on that basis in many, like, if there is if they have unhappy marriage, okay, the old man, even in the age of 50s or 60s, you know, they come with heart complaints and they have issues with their spouse. Then I think about Cratagus more. Then I move towards Cratagus more. मैं इसको एक बार स्टडी करूंगा सर। हाँ हाँ, ये प्रैक्टिकली थोड़ा इजी हो जाता है ना अपने को एंटर करने में। यस 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 यस, ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा। हाँ, फिर तो ये पानी की टंकी में डाल देनी चाहिए सबके घर में। पानी की टंकी में नहीं है, वो शराब की बोतल में डाल देनी चाहिए बॉयज की सारी। सही है, सही। बर्फ में डाल देंगे, बर्फ में। फिर फटाफट ठीक हो जाने सारे सारे। यस 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 यस, राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी स्पेस। बहुत अच्छा लगा सर, वेटिंग फॉर योर सेशन सर। Yes. It's always a Thank you, pleasure, thank you. darling. I don't disturb you because I know you're busy in the college and lectures and many activities. That's why I don't disturb you. मानसी, अभी योगी को बार बार बुलाने का, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ योगी। यस यस, कोई नहीं, आ जाऊंगा सर जब आपको। मैंने पहले से मैम को बोला, मैं सर के लिए कोई ना नहीं, कोई टाइम, कोई बात नहीं, जब मर्जी। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके ओके जी, ओके जी। संगीता। हाँ बेटा, ये मेरा पिल्लू है, ये मेरी बच्ची है अभी जो एंकरिंग करेगी ना योगी। जी सर। हाँ, आजा बेटा, आजा, ये मेरी बच्ची। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सर। Yes, थैंक यू योगेश सर, थैंक यू सर।
Thank you, Thank you, Yogesh sir, ma'am. for this insightful session on this cardiac health management through homeopathy. As a beginner in clinical practice, I truly appreciate the valuable knowledge you shared. I'm grateful for the guidance and looking forward to attending more of your lectures in the future. Thank you, ma'am. Thank you.